हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द शो। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2.6। 2.6 में कहा गया थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इफ दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 120 वोल्ट सप्लाई तो उनके सब के बीच में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करने की है। सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज कनेक्शन मतलब बैक टू बैक कनेक्शन। बैक टू बैक कनेक्शन के तीन इक्वल कैपेसिटर्स है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिंस वी आर हैविंग ऑल थ्री कैपेसिटर्स एज सेम वी कैन से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/C। Now inverting the value C equivalent will be given as C by 3, that is 9 picofarad over 3, that is equals to 3 picofarad of equivalent capacitance. Now talking about the voltage guys, if you are connecting each of these capacitors in series with a battery of 120 volt supply, then since the value of capacitance are same, that means the voltage division will be equal among all three capacitors. तो तीनों capacitors के बीच में voltage equally divide होगा, so all will be getting 40, 40 and 40 volt. So the final answer is V by 3, that is equals to 40 volt. Moving on to the next question, that is 2.7. Three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel, something like this. What is the total capacitance of the combination? Now guys, if you are finding out the parallel combination, that means it's very simple. Just add all the capacitance which are in parallel. So here you will be getting C1 plus C2 plus C3, that gives you the 9 picofarad. Now the next question is determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. Guys, make one thing very sure that if you are connecting a parallelly connected capacitors with a battery, that means हर कैपेसिटर को इक्वल वोल्टेज मिलेगा. दैट मीन्स ईच एंड एवरी कैपेसिटर विल बी गेटिंग 100 पिकोफैरेड. सो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, so all will get charge over here. Applying the same formula, Q is equals to C by V for all three capacitors. Q1 is equals to C1 by V, Q2 is equals to C2 by V, Q3 is equals to C3 by V. Then you will be getting 2 into 10 power minus 10, 3 into 10 power minus 10 and 4 into 10 power minus 10 after putting all the values. So it's a very simple question. Moving on to the next question, that is 2.8. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 power minus 3 meters square. So area is given to you and it is said that there is an air placed between both the plates. The distance between the plate is 3 mm. तो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है. Calculate the capacitance of a capacitor. It's very simple to calculate the capacitance of a capacitor, that is epsilon naught A by D. Putting all the values, you will be getting it is 17.71 picofarad. Now they also asked us what is the charge on each plate of the capacitor if the capacitor is connected to 100 volt supply. Q equal to CV है ना. तो चार्जेस जो होंगे वो Q इक्वल टू CV से हम देंगे Q इक्वल्स टू C इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट. इट्स वेरी सिंपल. नाउ एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस कि प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना. व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी कीपिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन बोथ द प्लेट्स, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन है. पहली कंडीशन है वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड, दूसरी कंडीशन है वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है. तो हम लोग डिस्कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और एक कनेक्टेड रख के डाइलेक्ट्रिक डालेंगे. तो सबसे पहले आपको बच्चों ये समझना है कि चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी, ठीक है. और ये वाला जो पहला कैपेसिटर है वो बैटरी से हम लोग डिस्कनेक्टेड रखने वाले हैं. वो ऑलरेडी चार्ज्ड है, उसके पास कुछ चार्जेस है और ये ग्रीन कलर की लाइंस इंडिकेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि चार्ज है, वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. दूसरा वाला कैपेसिटर है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है. लेकिन अब हम दो कंडीशंस के बारे में बात करने वाले. वन विच व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड सेकेंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी. तो क्या होता है, हम लोग कितने पैरामीटर स्टडी करने वाले. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, वॉच केयरफुली, वॉच क्लोजली, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गायब हो जाएगी. दैट मीन्स हो क्या रहा है कि पोलराइजेशन हो रहा है. पोलराइजेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, वोल्टेज कम होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम होती है, वी ऑलरेडी सीन दिस इन थियोरी. तो वोल्टेज भी के टाइम्स कम होगा. गाइस, चार्जेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने देख लिया, चार्जेस नहीं हिलेंगे, जो थे वो ही रहने वाले हैं.
सो यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे अब और फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। और सेकेंड पोजीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो वॉच क्लोजली, कुछ चार्जेस आकर डिपॉजिट हो जाएंगे बैटरी से। दैट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आने वाले चार्जेस है वो जो चली जाती इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक की वजह से चली जाती है, उसको बैलेंस कर लेंगे, जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, भले कितने भी चार्ज आगे क्यों ना आ जाए। आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। अब कैलकुलेशन करेंगे। सो कैपेसिटेंस दोनों केसेस के अंदर सेम रहेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। क्यों? क्योंकि दोनों में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, और कैपेसिटर वो जो है वो कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि उसके कंस्ट्रक्शन में डाइलेक्ट्रिक है तो फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट करेगा, एरिया ऑफ प्लेट्स है फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो दोनों में सेम है, कैपेसिटर का स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, तो कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, वोल्टेज हमने फर्स्ट केस में देखा वी नॉट बाई के हो रहा है, सेकंड केस में वोल्टेज उतना ही रहता है जितना पहले था। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग ने देखा चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, सेकेंड केस के अंदर हमने देखा चार्ज बढ़ता है। तो इतने पैरामीटर पे हमें कैलकुलेशन करना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। सो व्हेन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई के, और क्यू इक्वल टू क्यू के। सारी चीज़ें जो मैंने पीछे डिस्कस की, अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये C इक्वल्स टू सी नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी जो है वो दैट इज सी नॉट इंटू के, मतलब पहले जो कैपेसिटेंस था उसमें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ है, तो पहले कैपेसिटेंस 17.71 था प्रीवियस क्वेश्चन में, इंटू 10⁻12, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। So you'll be getting 106 into 10⁻12 farad, that is 106 पिको फैरेड। वोल्टेज जो है वो पहले 100 वोल्ट था और वो अभी 6 टाइम्स कम हो जाएगा, इट विल बी 16.7 वोल्ट। वेरी सिंपल, चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था, 17.71 इंटू 10⁻10 कूलम। नेक्स्ट केस के अंदर कैपेसिटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उतनी वैल्यू आएगी जितनी पहले आई, वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना बैटरी का था, चार्ज के टाइम्स बढ़ने वाला है, सो चार्ज यहाँ पर जो है वो 1.06 इंटू 10⁻10, मतलब के टाइम्स बढ़ गया। ठीक है गाइस, गॉट इट। नाउ द 10th क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in it? तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो ये 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। जब हम इसे बैटरी से कनेक्टेड करेंगे, बट ऑब्वियसली इसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, तो इसमें जो स्टोर होने वाली बच्चों एनर्जी है वो काफ़ी 3-4 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए डी, और एक था क्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो उसमें से आपको ये चेक करना है कि आपको दिया क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, दैट मीन्स वेरी सिंपल फॉर मी टू मार्क आउट। आई विल बी पुटिंग डायरेक्टली हाफ सी वी स्क्वायर इंटू द फॉर्मूला, और सारी वैल्यूज पुट करते ही मुझे 1.5 इंटू 10⁻8 जूल मिल जाएगा। इट्स एन MCQ बेस्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, राइट। आई होप यू हैव गॉट ऑल दिस 5 क्वेश्चन फॉर द डे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज टू कम। थैंक यू सो मच।